Well, good morning, students. The information of the lecture is date November 11, 2020, class 8th, subject English. And this is Communicate with Cambridge we are reading, and that's unit 4, 5. It is unit 5, and this is we are at the section B. Section A we completed, that was the discovery of the penicillin, and this is section B is talking about influenza. It's a type of disease basically, right? So unit 5 is the marvels of medicine, right? And then it is section B, influenza, we are going to read now. Influenza, let's just read a warm-up exercise before we just begin the process of reading the text. This makes us a bit familiar about the text or any poem we are going to read further. It helps us to understand the basic nitty-gritty of the fact. So warm-up is given. You may have heard or read of epidemics. Epidemics means what, students? Mahamari, which is going on in these days also, because of which we are staying at home, and we have to do all the work from home ourselves, right? So this is called epidemic, like this coronavirus epidemic is going on. So today we are going to read about influenza epidemic, right? So instead of reading, we are even just dealing with it in today's time, this coronavirus epidemic, right? Something like the spread of dengue or H1N1. These are sort of epidemics. News channels often hold discussions about what could have been done to prevent the spread of the disease. न्यूज़ चैनल्स के ऊपर डिबेट डिस्कशन आर्ग्यूमेंट सब चलता रहता है इस चीज़ को लेकर के भी किसको इसको किस तरह से ऐसे रोका जा सकता है हैव बीन डन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज किस तरह से रोका जा सकता है बट what if there was a new strain of flu? Strain of flu means here कोई कुछ बुरा होने वाला होता है उसकी कुछ चेन सी बन जाना कि भाई वो पूरी कंट्री सोसाइटी और समाज के अंदर फैल जाना फ्लू हो सकता है और या फिर फीवर हो सकता है दैट डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू मेडिकेशन मेडिकेशन मीन्स कि भाई उसकी कोई दवाई नहीं बनती है और बन पाती है जैसा कि अभी आजकल हमारे साथ चल रहे हैं वी हैवंट गॉट द medicines or medications for this coronavirus it is under process or from which people would only recover if it were detected in the early stages और फिर कुछ ऐसा हो कि भाई इस तरह की अगर बीमारियां हो जाती हैं तो सिर्फ वही लोग रिकवर कर पाते हैं जो कि स्टार्टिंग स्टेज पर होते हैं what if one were not sure how the disease was spreading और कई बार क्या होता है कि ऐसा पता चले कि भाई ये समझ ही नहीं आता कि ये बीमारी किस तरह से फैली है right now today we are living in the 21st century we just found out everything related to coronavirus how it spreads how to take precautions what sort of things are to be kept in mind lekin but if we talk about the earlier times we can't make sure the things के लोगों को पता भी होता था किस तरह से ये डिजीज स्प्रेड करती है फैलती है किस तरह से इससे बचा जा सकता है this was written in the past basically and there were no इनकॉल्यूशंस बेसिक इनकॉल्यूशंस होते हैं टीका टीकाकरण करना होता है ना जो इंजेक्शंस जो लगते हैं इनकॉल्यूशन बोला जाता है मेडिसिन जो उसके अंदर होती है वो जो इलनेस को फ्लू को फीवर को क्योर करती है टू प्रोटेक्ट वन फ्रॉम इट जो कि उसका कोई इंजेक्शन कोई टीका नहीं था वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस नाउ यू सी you just need to discuss with your friends leagues family members about such type of epidemics and how to just be away from these sorts of epidemics and be safe, right? So let's just read the text. In 1918, as a terrible flu
पेंडेमिक स्वेप्ट द वर्ल्ड। स्वेप्ट द वर्ल्ड मीन्स वो यहाँ पर बता रहा है कि पूरा देश के अंदर जो है तनाव भरा हुआ था, बिल्कुल एकदम पूरे देश के अंदर 1918 के अंदर, पूरा वर्ल्ड के अंदर, नॉट देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। चिल्ड्रन डांस्ड टू दिस नर्सरी राइम। छोटे बच्चे जो है, हमारा जो राइटर है वो कहता है कि छोटे बच्चे जो है नर्सरी की एक राइम के ऊपर जो है डांस कर रहे होते हैं। और उस नर्सरी राइम का जो टाइटल है वो कैसे चलता है, कैसे उसकी लाइनिंग्स है। आई हैड अ लिटिल बर्ड एंड इट्स नेम वाज एंजर, आई ओपन द विंडो एंड in flew Enza. Now you see, these are the lines of the poem basically, which you have to memorize. The meaning is a bit different because this is a poem. वो कहता है कि छोटे बच्चे इस राइम के ऊपर जो है डांस करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो इसकी राइम के ऊपर, जो ये राइम उसने दिखाई है, इसके ऊपर जो है डांस करते हैं। और वो क्या डांस करते हैं? आई हैड अ लिटिल बर्ड, कि भाई मेरे पास जो है एक लिटिल बर्ड था और उसका नाम था एंजा। और जैसे ही मैंने डोर ओपन की, आई ओपन द विंडो, सॉरी विंडो को मैंने जैसे ही ओपन किया, इन फ्लू एंजा। यानी कि इसका जो मीनिंग दिया गया है कि जो एंजा है वो फ्लाई कर जाता है इन, राइट। सो ये पोएम है, इट्स अ स्मॉट। सो इस तरह से जो है छोटे बच्चे डांस करते हैं। Let's see what it talks about further. Man's brutality to man was responsible for millions of deaths in the First World War. अब हमारा राइटर जो है शुरू करता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो इंसान की निर्दयता थी, निर्दयता की वो बात कर रहे हैं। ब्रुटैलिटी मीन्स होता है निर्दयता। अंडरलाइन कर लेंगे भाई सभी बच्चे और इसको नोट करेंगे। Brutality means nirdayata, the one who is very cruel, right? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर मिलियंस, लाखों लोग मरे वहां पर, वो इंसानों की निर्दयता ही तो थी। द वॉर हैड ऑलमोस्ट कम टू एन एंड, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था वो एंड पर आ जाता है। When mankind was struck by a terrible contagion. Contagion means क्या होता है children? You just need to say this word here. Or if you have the books, you can check the meaning of the contagions in your book also. A disease spread by close contact between victims. If anyone gets in the contact of the victims, victim वो होता है जो सफ़र कर रहा है इस तरह की बीमारी से, अगर कोई भी उसके कांटेक्ट में आता है तो वो भी जो है सेम, सिर्फ टच से जो है फैलने वाली जो बीमारी होती है उसको कंटेजियंस बोला जाता है। That started adding to the already horrific death toll. Horrific means वो कहता है बड़ा भयानक जो मृत्यु का तांडव था, वो कहता है वो देखने को मिला वहां पर, वो बढ़ता चला गया। इन द स्प्रिंग ऑफ 1918, अब स्प्रिंग मंथ की बात कर रहे हैं, 1918 में क्या हुआ? लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स ऑन द बैटल फील्ड्स ऑफ फ्रांस बिकेम इल। अब हमारा ऑथर हमें बताता है कि स्प्रिंग में क्या हुआ, फ्रांस के बहुत ही ज्यादा सोल्जर्स, लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ज्यादा नंबर में जो है सोल्जर्स क्या हो गए? बीमार पड़ गए, बिकेम इल। दे कंप्लेन्ड ऑफ सोर थ्रोट, वो जो है कंप्लेन करते हैं सोर थ्रोट की। सोर थ्रोट होता है गले का दुखना, हेडेक होना, एंड अ लॉस ऑफ एपेटाइट, और भूख न लगना। एपेटाइट होता है हंगर, लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख न लगना। Although it appeared to be highly infectious, हालांकि वो कहता है ये कैसा प्रतीत हुआ कि बहुत ही ज्यादा ऐसा बीमारी थी कि फैलती जा रही थी, इन्फेक्चुअस थी बीमारी ये। मोस्ट विक्टिम्स रिकवर्ड क्विकली, लेकिन कई विक्टिम्स कुछ ऐसे थे बहुत ज्यादा जो कि जल्दी रिकवर कर गए इस बीमारी से। विक्टिम्स रिकवर्ड क्विकली। This indeed doctors to call the disease the 3-day fever. और सच में दिस इंडीड मीन्स वो कहते हैं कि सच में डॉक्टर्स ने उसे बोला कि ये 3 दिन का बुखार है, 3-day fever.
French soldiers jokingly referred to it as the Spanish flu. और जो फ्रेंच के सोल्जर्स थे वो मजाकिया वे में कहते थे कि ये फ्लू जो है स्पेनिश से आया है, ये स्पेनिश फ्लू है, दिस इज स्पेनिश फ्लू. While in Spain they called it French flu. और स्पेन में जो है वो फ्रेंच फ्लू बोलते थे इसको. This was in a joking way or somewhat serious also. कुछ हद तक ये सीरियस भी था कि जो सोल्जर्स थे वो बोलते थे, फ्रांस के सोल्जर्स बोलते थे ये स्पेनिश फ्लू है, और स्पेन के सोल्जर्स बोलते थे कि ये फ्रेंच फ्लू है. फिंगर्स वर बीइंग pointed everywhere with the Middle East. यानी कि उंगलियां जो हैं चारों तरफ उठ रही थी, everywhere with the Middle East. वो कहता है मिडिल ईस्ट के साथ क्या हुआ, चाइना एंड इंडिया all being named the source of infection at various times. और मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा था कि वो सिर्फ चाइना को या फिर इंडिया को जो है बोल रहे थे कि भाई दीज कंट्रीज आर द सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन. ये दोनों कंट्रियां हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन फैला है और बढ़ रहा है एट वेरियस टाइम्स, काफी जगहों पर काफी समय से. मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है वेयर मुस्लिम पीपल लिव देयर फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. अगले कुछ महीने क्या होता है, सोल्जर्स कंटिन्यू टू बी इन्फेक्टेड. कुछ महीनों तक जो सोल्जर्स कंटिन्यू इन्फेक्टेड होते रहे, right, with the virus, but there were very few deaths. लेकिन हुआ क्या, वायरस से वो इन्फेक्टेड तो होते रहे, लेकिन साथ के साथ क्या होता है, रिकवर भी करते रहे और डेथ रेट जो है वो कम हो जाती है. फ्यू डेथ्स, बहुत कम डेथ्स हुई. हाउएवर इन द समर ऑफ 1918, फिर भी वो कहता है हाउएवर समर में क्या हुआ 1918 के, द सिम्टम्स ग्रू मच वर्स. और जो ये पेंडेमिक थी, जो कंटेजियस ये डिजीज थी, इसके जो सिम्टम्स थे बहुत ही ज्यादा मात्रा में ग्रो करके, बहुत ही ज्यादा 1918 समर में. अबाउट अ फिल्ड ऑफ द विक्टिम डेवलप्ड ब्रोंकाइल निमोनिया और ब्लड पॉइजनिंग. ब्रोंकाइल मीन्स होता है जो श्वास की हमारी नलिका होती है उससे सांस लेने में प्रॉब्लम होना, ब्रोंकाइल निमोनिया एंड ब्लड पॉइजनिंग, और खून के अंदर जहर का होना. A large percentage of these men died, other developed. Large number of percentage, बहुत ही मात्रा में जो है लोग जो है मरे, इंसान जो है मरे वहां पर सिर्फ इस बीमारी की वजह से. Others developed heliotrope Heliotrope means a symptom of influenza in which the skin becomes bluish in color. अब ये इन्फ्लुएंजा क्या बीमारी है कि इसमें जो है हमारी स्किन जो है वो ब्लू हो जाती है. दैट स्किन बिकम्स ब्लू, नीली पड़ जाती है, राइट. हेलियोट्रोप सिनोप्सिस मीन्स हमारी जो स्किन है वो ब्लू पड़ जाती है, और उसको वो बोला जाता है दैट इज द सिम्टम ऑफ इन्फ्लुएंजा. कुछ तो मर गए और कुछ को जो है डेवलप कर गया उनकी बॉडी के अंदर इन्फ्लुएंजा. Doctors were able to identify this by the bluish color of the victim's skin. और जो डॉक्टर्स थे वो केवल इसी तरह से आइडेंटिफाई कर पाते थे कि भी जो विक्टिम है, जो बीमार है, उसकी जो स्किन है वो ब्लू हो जाती थी, इन्फ्लुएंजा हो जाता था उसको. ऑलमोस्ट एवरीवन विद हेलियोट्रोप सिनोसिस. You can see the picture on the screen, children, how they are just carrying the victims. Now see in the on the picture, see how many beds are there and doctors are there and the patients are there, right? We need to understand this is called a pandemic when there is no space in the hospitals and a large number of people fall ill, right? Everyone, let's see. Where the heliotrope सिनोसिस died within a few days of contacting it. जब वो किसी विक्टिम के कांटेक्ट में आते तो वो कुछ ही दिनों के अंदर जो है मर जाया करते थे, डाई हो जाते थे within a few days, कुछ ही दिनों में कांटेक्ट होने के बाद. The second wave of the epidemic spread quickly. Second wave, if we talk about second wave की अगर हम बात कर रहे हैं,
सेकेंड वेव ऑफ द एपिडेमिक स्प्रेड क्विकली, बड़ी तेजी से, जिसको हम सेकेंड राउंड भी बोल सकते हैं. इन वन सेक्टर ऑफ द वेस्टर्न फ्रंट ओवर 70,000 अमेरिकन ट्रूप्स वर हॉस्पिटलाइज्ड. इट इज अनबिलीवेबल दैट अमेरिका के ट्रूप्स होती है सोल्जर्स, 70,000 के लगभग सोल्जर्स को जो है हॉस्पिटल्स के अंदर जो है एडमिट कराना पड़ा. एंड नियरली वन थर्ड ऑफ दीज मेन डाइड. वन थर्ड मीन्स इसका तीसरा हिस्सा जो था वो मर गए थे बीमारी की वजह से. कुछ कितनों को हॉस्पिटल कराया और इसका थर्ड पार्ट जो है वो क्या हो चुका था, मर चुके थे. By the end of the summer, the virus had reached the German army. और समर के एंड तक आते आते जो ये वायरस था ये जर्मन आर्मी तक पहुंच गया. The loss of lives was so high that German military leaders found it impossible to find substitutes for their sick and dying soldiers. Now we come to know that the virus reached to the German army और the loss of lives was so high, बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो है सोल्जर्स मरने लगे because of this influenza that German military leaders found it impossible. बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया कि भाई किस तरह से फाइंड आउट करे इसके सब्सटीट्यूट को, इसको ठीक कैसे किया जाए फॉर देयर सिक एंड डाइंग सोल्जर्स. जो उनके बीमार सोल्जर्स थे और मर रहे थे, किस तरह से इसको रिप्लेस किया जाए, किस तरह से इस बीमारी को ठीक किया जाए, बड़ा इम्पॉसिबल होता जा रहा था उन सब के लिए. द इन्फेक्शन देन स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ जर्मनी. और बाद में जो है ये इन्फेक्शन पूरी जर्मनी में फैल गया. स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ जर्मनी, killing over 4 lakh civilians in 1918. और इन्होंने जो है इस वायरस ने लगभग 4 लाख 4 लाख सिविलियंस की जान ले ली, मर गए वहां पर 1918 के अंदर. In Britain, the outbreak of cholera in 1849 had already resulted in a high death toll on a national scale. और ब्रिटेन के अंदर क्या होता है, एक रिकॉर्ड तोड़ आउटब्रेक ऑफ कॉलरा, राइट, जिसको हैजा हम लोग बोलते हैं, कॉलरा इन 1849 में हुआ था, हैड ऑलरेडी रिजल्टेड अ हाई डेथ. सबसे ज़्यादा जो डेथ थी, बहुत ज़्यादा डेथ जो थी वो 1849 में ब्रिटेन के अंदर हुई कॉलरा की वजह से. टोल ऑन द नेशनल स्केल, पूरी कंट्री के अंदर. All this changed when the first case of influenza were detected in Glasgow in May 18. और जब ग्लासगो के अंदर मई 18 के अंदर एक इन्फ्लुएंजा का एक फर्स्ट केस डिटेक्ट किया गया, उसने उस फेज को बिल्कुल चेंज कर दिया. पहले लोगों की क्या थी परसेप्शन दैट अभी तक कॉलरा की वजह से ब्रिटेन के अंदर इतने लोग मरे, लेकिन जब ये पता चला कि इन्फ्लुएंजा करके एक बीमारी आई है, लाइक वी नो अबाउट दिस कोरोना वायरस, जैसे ही लोगों को पता चला तो वो उसने चेंज कर दिया पूरे फेस को कि क्या चल रहा था. It soon spread to other towns and cities, and during the next few months, the virus killed over 2 lakh people in Britain. और इस इन्फ्लुएंजा की वजह से बड़ी तेजी से ये फैलता चला गया. इट गॉट स्प्रेड क्विकली, बड़ी तेजी से ये स्प्रेड होता चला गया, फैलता चला गया. और जिसकी वजह से जर्मनी के अंदर वो कहते हैं, सॉरी ब्रिटेन के अंदर वो कहते हैं, विद इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों के अंदर द वायरस किल्ड ओवर 2 लाख पीपल इन ब्रिटेन. 2 लाख लोग जो है ब्रिटेन के अंदर मर गए थे, जिन्होंने अपनी लाइफ खो दी थी. ब्रिटेन बिकेम डेस्परेट टू प्रिवेंट द स्प्रेड. डेस्परेट मीन्स होता है बेकरार हो जाना, वो चक्कर रह जाना बिल्कुल एकदम से, कि भाई बेकरार था कि भाई टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज. प्रिवेंट मीन्स टू स्टॉप, रोकने के लिए इस डिजीज को बड़ा बेकरार था कि क्या करे कैसे करे. स्ट्रीट्स वर स्प्रेड विद केमिकल्स, गलियों के अंदर जो है केमिकल का स्प्रे किया गया. एंड पीपल बिगेन टू वेयर एंटी जर्म मास्क,
और लोगों ने जो है एंटी जर्म मास्क पहनने शुरू कर दिए। Like we use this face mask with us, they used face mask, hand masks, this neck masks to cover the complete body so that it should not get in contact with the influenza, right? Civic minded factory owners, now you see, civic minded factory owners changed their no smoking rules in the mistaken belief that tobacco fumes could kill the virus. सिविक माइंडेड कुछ लोग जो समाज के बारे में सोचते हैं, उनकी फैक्ट्रीज के अंदर क्या होता है बच्चों, लिखा रहता है कि स्मोकिंग इज नॉट अलाउड या फिर नो स्मोकिंग जोन। लेकिन इन लोगों ने भी क्या किया, अपनी फैक्ट्री के अंदर जो है उन ओनर्स ने चेंज देयर नो स्मोकिंग रूल्स को चेंज कर दिया। और मिस्टेकन बिलीफ, उनका विश्वास था कि भाई जो तंबाकू का धुआं होता है, फ्यूम होता है धुआं, टोबैको फ्यूम्स कुड किल द वायरस, ये जो फ्यूम है, जो धुआं है, ये वायरस को मार देता है, किल कर देता है। अदर पीपल वांटेड टू बिलीव दैट, और कुछ दूसरे लोग थे वो क्या विश्वास करते थे, दैट ईटिंग प्लेंटी ऑफ पोरेज होता है हलवा खाना, अगर आप ज्यादा मात्रा में पोरेज खाते हो, हलवा खाते हो, वुड प्रोटेक्ट देम, उनको प्रोटेक्ट करेगा जो ज्यादा मात्रा में हलवा खाते हैं, मीन्स लाइट फूड जिसको हम लोग बोलते हैं, फ्रॉम दिस किलर डिजीज, इस तरह की जो है किलर डिजीज से। While these heroic and imaginative attempts, जबकि कहा जाता है कि इस तरह के हीरोइक और इमेजिनेटिव, काल्पनिक और हीरोइक, हीरो की तरह जो है, नायक की तरह वाले जो अटेम्प्ट्स हुए टू डील विद दिस न्यू स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा वेंट ऑन, नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट वाज इन साइट। और क्या देखने को मिलता है कि इस तरह के काल्पनिक अटेम्प्ट जो थे, ये जो स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा था, जिस इन्फ्लुएंजा की वजह से बुरा हाल हुआ था, उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, नो इफेक्ट ट्रीटमेंट वाज इन साइट, देखने को मिला। इनसाइट मीन्स देखने को मिलना, कहते हैं किसी तरह का कोई भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वहां पर उनको देखने को नहीं मिला। राइट एवरीवन, द यूएस वाज आल्सो सीरियसली अफेक्टेड बाय द वायरस, और यूएस के अंदर जो है बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन फैल चुका था लोगों के बीच में, पीपल के बीच में। बाय सितंबर अ पर्टिकुलरली नेस्टी स्ट्रेन स्वेप्ट अक्रॉस द कंट्री, और सितंबर के आते आते क्या हुआ है, पर्टिकुलरली एक विशेष रूप से कहता है, पूरे देश के अंदर पूरा बुरा, बहुत ही गंदा तनाव फैल चुका था पूरी कंट्री के अंदर लोगों के बीच में। Almost 500,000 American died of the disease by early December 1918. दिसंबर के स्टार्टिंग में ही क्या हुआ, 500,000, more than 4-5 lakh people died because of this disease. इस डिजीज की वजह से 500,000 पीपल जो है क्या हो गए थे, मर गए थे, डिजीज की वजह से मर चुके थे, खत्म हो चुके थे। India was the country that suffered possibly the most. The first cases were reported in Bombay. और इंडिया के अंदर जो पहले केसेस थे वो बॉम्बे के अंदर डिटेक्ट किए गए, जिसको आजकल हम मुंबई बोलते हैं। और इन जून 1918 में सून कराची के अंदर, कराची देन पार्ट ऑफ इंडिया, नाउ इन पाकिस्तान, जो कि उस समय इंडिया का पार्ट होता था कराची, लेकिन अब जो है ये कराची पाकिस्तान का पार्ट है। राइट, दिस इज द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान का पार्ट है ये। एंड मद्रास, और मद्रास को जो है, ये जो अर्ली केसेस पकड़े गए ये उनके बारे में बताया जा रहा है, मुंबई के अंदर, चेन्नई के अंदर और कराची के अंदर। मद्रास पुराना नाम है, नया नाम इसका है चेन्नई। सी द पिक्चर ऑफ द पेशेंट्स एंड द डॉक्टर्स टेकिंग केयर। चेन्नई मद्रास को बोला जाता है। बिगेन टू रिपोर्ट इंसिडेंट्स ऑफ द डिजीज, और उन्होंने जो है इस तरह की डिजीज के रिपोर्ट्स देना शुरू कर दिया, और ये स्टार्टिंग स्टेज है इंडिया के अंदर जो बताया गया है। दैट्स इनफ फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स।
Rest of the lecture we'll do in the next lecture, because we will not be able to complete this. So any one of you want to ask any question, you're all open to just raise your hands, and just you'll be given chance to ask a question, right everyone? So for this I'm going to stop the recording, and your questions will be taken now onward.